राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन सभी लोग गाइए यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Sitaram 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 Lakshmana Hanuman Jaya Radha Rasmi Hari Radha Rasmi Hari Radha Rasmi Hari Shri Radhe Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की कलयुग पावन हरे कृष्ण महामंत्र की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. So welcome you all for this session today. So almost everybody of us is staying at home, है ना, सब लोग घर पे ही रहते हैं. So प्रभु जी gave me this PPT long before. So Prabhu ji gave me this PPT long before, but I was not using this. Prabhu ji gave so many PPTs to do this. So I thought I should do this Bhakti Yoga at home, है ना.
सो मोस्टली हम लोग घर पे ही रहते हैं, तो हम लोग को बहुत हेल्प मिलेगा सीखने के लिए कैसे हम भक्ति कर सकते हैं अपने घर पे भी. सो लेट्स गो. सो इन भगवद गीता इट सेज ज्ञानम विज्ञानम सहितम स ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्. ज्ञानम means theoretical knowledge becomes Vigyan means realized knowledge when put into practice, or else it is useless. So my God, it was muted. सॉरी. हाँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो ज्ञानम theoretical knowledge becomes Vigyan means realized knowledge when put into practice, or else it is useless. For example, not sitting on train after purchasing a ticket. So nowadays, you know, UP Bihar side getting a ticket is very very risky actually. Like, okay, Hindi English both today because the presentation is in English only. Okay, so हम लोग so not sitting on train after purchasing a ticket, and the second one, not taking medicine after receiving from doctor. So somebody may have fever and that person went to doctor and doctor gave him some medicine, and now this person is not taking it. So what's the use? So in the same way, what's the use if we are coming here listening something and not practicing in our life? So what we are doing? We are hearing to do bhakti, but at home we stuck somewhere, right? We don't use, maybe due to some family issues, or maybe some circumstances, maybe place or something. So many issues are there, so that's why we are not able to practice bhakti. So in this presentation we'll see how we can practice bhakti yoga at our home. Okay, so let's see the next. So in battlefield of Kurukshetra, both armies, are there, like Pandavas and Kauravas. So they were just going to fight, and now in the बहुत intense situation है वहाँ पे उस समय, and they are going to fight, but in that intense situation Arjuna heard this Bhagavad Gita. So many people, they say that I have so many problems and I am so busy in my office, my business, my family life. There are so many excuses comes out. But here we see that in battlefield of Kurukshetra अभी वार होने वाला है, और उस समय अर्जुन को भगवान ने सुनाया. ओके, यस, गुड. सो हमारे जीवन में भी कोई भी इंटेंस सिचुएशन रहने दो, कुछ भी रहने दो. अब महाभारत जैसा सिचुएशन तो आते ही रहता है ना. कभी भी 24 घंटे में कई बार ऐसा जीवन उलट पलट हो जाता है, जब लगता है कि बस ये करूँ या जीवन छोड़ दूँ. होता है. ऑफकोर्स भक्तों की लाइफ में बहुत कम होता है, बिकॉज भक्तों को लगता है कि अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उठाओ माला, जपो हरे कृष्णा, है ना. सो इन आवर लाइफ वी आर वेरी Prabhupada gave us very simple process. If you are not understanding anything, don't do anything, just chant Hare Krishna. So recently one issue happened to one devotee. He was from Pakistan. He was staying in our this Punjabi Bog temple in Delhi. Okay, so he is from Pakistan. तो किसी न्यूज़ वाले को पता चल गया कि एक पाकिस्तानी इस्कॉन मंदिर में रह रहा है. सो मे बी यू माइट ऑल्सो नो दिस न्यूज़, है ना. सो उसने, पुलिस आ गई, उसको उठा के ले गई कि तुम पाकिस्तान से कैसे आ गए इधर, है ना. ये डिवोटी इज़ वेरी सिंपल डिवोटी. सो पुलिस आके पूछताछ किया 5 मिनट और बोला ठीक है बैठो. एंड उसने क्या किया, बिड बैग निकाला, चैंटिंग चालू हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. उसको ये टेंशन नहीं है कि जेल में लेके आए, किधर भी लेके आए, है ना. हमारे साथ होता है कभी कभी ऐसा कि हम जप करने लगते हैं, लेकिन बहुत
टाइम पे ऐसा होता है कि हम फंस जाते हैं, बिकॉज हमारा प्रैक्टिस उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि हम किसी कौन से प्लेस पे हैं मुझे पता नहीं है ना। और जैसे मान लो हम ऑफिस में गए हैं, ऑफिस में ऊपर से बॉस आके बोल रहा है यही करना है यही करना है, फंस जाते हैं वहाँ पे, है ना। तो हमें ऐसे सिचुएशन में भी भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान के नाम का जप करना है। ओके, सो किसी भी सिचुएशन में हो हमें भक्ति योगा कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं हम इस प्रेजेंटेशन में थोड़ा समझ सकते हैं। ओके, सो लेट्स गो अहेड। Krishna spoke the Bhagavad Gita to Arjuna in order to show the world that this timeless message is meant not only for renunciate. So now one question arise here that लोग बोलते हैं कि अरे आप तो साधु हो, जैसे मंदिर में ऐसा जपा माला पे लोग बोल देते हैं कि अरे आप लोग तो साधु हो, कुछ काम वाम करते नहीं हो, आप लोग का तो यही काम है तो कर सकते हो आप लोग, हमारा तो बहुत बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट काम है ना, तो हम वो काम छोड़ के ये जपा नहीं कर सकते, ये भक्ति नहीं कर सकते, भगवद गीता पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना। बट अगर ऐसा रहता तो भगवान ने अर्जुन को क्यों बोला? अर्जुन भी तो फैमिली लाइफ वाला है, उसको बहुत सारी, ही हैड सो मेनी वाइफ्स एंड ऑल्सो वो युद्ध करने जा रहे हैं अभी, है ना। तो एक मैसेज हमें गीता से मिलता है कि भगवान ने किसी साधु को नहीं दिया, है ना, किसी सन्यासी को ये नॉलेज नहीं दिया, किसको दिया? एक हाउस होल्डर को दिया, है ना, गृहस्थ व्यक्ति को दिया। तो थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें एक लेसन छुपा हुआ है हमारे लिए कि गृहस्थ व्यक्ति, मतलब भगवान चाह रहे हैं, ऐसा मैसेज दिखा भी रहे हैं भगवान कि एक गृहस्थ व्यक्ति भी ये नॉलेज प्रैक्टिस कर सकता है। बट ऑल्सो फॉर हाउस होल्डर विथ फैमिली एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो हमारे पास भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फैमिली लाइफ है ना, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, कभी कभी किन की शादी में किधर जाना है ना, पार्टी में जाना है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं ना। कोई हमारे घर में मेहमान बन के आ गया तो फिर उनकी खातिरदारी करो, तो एक संडे चला गया है ना, है कि नहीं, या फिर किधर जाना पड़ा रिलेटिव्स के यहाँ, तो ये फैमिली लाइफ में होता है। पर स्टिल भगवान ने किसी साधु को नहीं दिया गीता का ज्ञान, जो कि बहुत गुह्य है, बहुत सीक्रेट है, सब लोग को पता नहीं है। इवन दो पीपल आउटसाइड दे नो गीता बट दे डोंट नो द मैसेज ऑफ गीता, द रियल मैसेज ऑफ गीता। दे नो ये गीता इज समथिंग कपड़े में लपेट के रखना है, दैट्स दे नो। ओके, सो देयर आर सम मिसकॉन्सेप्शन ऑल्सो, एंड व्हाट इज मिसकॉन्सेप्शन अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ? सो व्हाट इज द spiritual life is retirement program. It's a very very famous misconception. I can say that मैं रिटायर हो जाऊंगी तब भक्ति करूंगी, है ना, और इतने में हमारा जीवन चला गया। और बुढ़ापे में क्या मिला हमको? हमारा हाथ काम नहीं कर रहा है, पैर काम नहीं कर रहा है, कान काम नहीं कर रहा है ना, आँख में चश्मा लग गया है, सही से उठ बैठ भी नहीं कर सकते। इवन दो बुढ़ापे में हम भगवान को दंडवत भी नहीं मार सकते बढ़िया से, माता जी लोग पंचांग भी नहीं, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है ना, नी प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम। सो लोग प्लान बना के चलते आफ्टर 60 और मे बी आफ्टर आई विल गेट डॉटर इन लॉ एंड देन आई विल गेट ग्रैंडसन एंड देन आई विल स्टार्ट डूइंग ऑल दिस थिंग्स, है ना, ऐसा होता है ना प्रभु जी। बट देन व्हाट विल यू ऑफर टू कृष्णा? अब एकदम फ्रेश कोई फ्रूट है, आप वो भगवान को दोगे या सड़ा गला फ्रूट दोगे? कौन सा देना चाहोगे आप? फ्रेश फूड दोगे ना। तो फ्रेश फूड मतलब अभी यंग एज से हम भगवान की भक्ति शुरू कर सकते हैं, है ना। अच्छा, देयर आर दिस इज ऑल्सो फेमस, स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स टू गिव अप एवरीथिंग। अगर हम किसी को बोलते हैं चैंटिंग करना शुरू करो, एंड देन बिकॉज आई डू मोस्ट ऑफ द टाइम सर्विस एट हेल्प डेस्क, सो आई गेट सम रियलाइजेशन फ्रॉम देयर। लोग आते नहीं 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 नहीं, हमारा काम नहीं, 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 छूना नहीं है, छूना नहीं है ना। वो कभी कभी माला भी टच नहीं करते प्रभु जी, है ना। सो कुछ ऐसे ही एक माता जी, कल की बात है, तो वो बोली कि मैंने कुछ बाल धुला नहीं है तो मैं टच नहीं करूँगी माला, बट स्टिल सी कैन चैंट ना। ओके, देयर मे बी सम अदर प्रॉब्लम, बट उन्होंने नहीं चैंट किया। ओके, ऐसे ही एक ओल्ड एज वाले डिवोटी आए थे कुछ दिन पहले, तो उन्होंने बोला कि नहीं 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 नहीं, अभी मेरे को ऑफिस जाना है तो मैं अभी नहीं कर सकता। तो ऑफिस जाने से पहले तो भगवान का नाम लेना चाहिए ना, बट मिसकॉन्सेप्शन है नहीं 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 मैं नहीं कर सकता ही। ऐसे ही गौरांग प्रभु एक स्टोरी बताते हैं, गौरांग दास प्रभु चौपाटी वाले, कि एक बार एक यंग एज का डिवोटी ज्वाइन हो गया टेम्पल, ठीक है, तो उनके घर वाले आए उनको ले जाने के लिए, ठीक है, बहुत फेमस है, आप लोग ने सुना रहेगा मैं भी। तो ले जाने आए तो बातचीत करे, अरे अभी इसका उम्र ही क्या है,
छोड़ दो इसको, जाने दो, है ना, अभी तो ये दुनिया संसार देखेगा, है ना, कुछ मस्ती करेगा, एंजॉय करेगा, तो फिर बुढ़ापे में भक्ति कर सकता है। गौरांग प्रभु भी काफ़ी, है ना, बोलते ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इनको जाने दो, आप आ जाओ बोल दिया आप आ जाओ। तो ये बोले अच्छा ऐसा भी है क्या, ठीक है मैं अपनी वाइफ से पूछ के बताता हूँ, 1-2 दिन का समय दे दो फिर गए, फिर 1-2 दिन बाद आए, बोले नहीं ठीक है इसको ही रहने दो ठीक है चल जाएगा, कोई नहीं, हम लोग ये कर लेंगे। मतलब भक्ति लोग नहीं करना चाहते, एक्चुअली सुकृति नहीं रहता, उसकी वजह से भी लोग भक्ति को कवर अप नहीं कर पाते, उठा नहीं पाते अपने जीवन में। लेकिन ठीक है, हम लोग तो आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं, क्लासेस सुन रहे हैं और जब कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो हमें और ज़्यादा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भगवान को प्राप्त करना इट्स नॉट ईजी जॉब ना। इवन दो मटेरियल जॉब, ये जो क्या बोलते हैं कॉर्पोरेट्स में जॉब लेना इज़ नॉट ईजी, तो भगवान को प्राप्त करना इवन दो इट्स ईजी, बट इन वन सेंस इट्स नॉट दैट मच ईजी जितना आप समझते हो, है ना। ठीक है, ओके नेक्स्ट। So what is spiritual life as per Bhagavad Gita? So Gita tells how to live dynamically. This knowledge should be given at the age of 5, so one can live his life perfectly. So in Srimad Bhagavatam, it says that Kaumar acharit pragyo dharman bhagavata hanihi. It means one should like we already discussed now, one should start his spiritual life from the beginning of his age. Like Prahlad Maharaj says, one should start at the age of 5. So from the age of 5 one should start. If किसी ने स्टार्ट कर लिया स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, तो शुरू से ही कितना वो मतलब 20 साल तक आते आते उसको बहुत सारी फिलोसफी पता रहेगी, है ना, भगवद गीता के बहुत सारे श्लोकास याद रहेंगे, जपा में वो बहुत डिटरमाइंड रहेगा। क्योंकि जैसे कि एक ब्लैक बोर्ड होता है ना, तो ऐसा माना जाता है जो छोटे बच्चे का जो हृदय रहता है ना, ब्लैक बोर्ड के समान रहता है, उस समय जो लिख दो पूरे जीवन उसके हृदय पटल पर अंकित रहेगा। मरते समय भी उसे याद रहेगा कि बचपन में मुझे ये बाजू वाली आंटी ने एक चाटा मारा था, है ना, अच्छा वो मर गई ऐसा लोग बोलते हैं स्टिल, है ना। और मुझे मतलब आप लोग को भी याद है, महिपाल प्रभु एक दिन बता रहे थे कि बचपन में कैसे वो स्कूल जाते थे, तो एक दिन बता रहे थे, तो हम सबको याद रहता है बचपन में किसने क्या बोला था, है ना। वो बाजू वाली आंटी आके बोलती थी अच्छा जल्दी आ गया ट्यूशन से है ना प्रभु। सो प्रभु जी ने एक दिन बताया था, तो ये हमारे माइंड पे, है ना, एक तरीके से इम्प्रेशंस बन जाते हैं बचपन से ही। तो अगर किसी ने बचपन से ही भक्ति चालू किया तो कितना अच्छा भक्ति का इम्प्रेशन रहेगा। तो ऑफकोर्स बहुत सारे घर में छोटे बच्चे आप लोग के घर में रहेंगे, तो उनको आपको भागवत की शिक्षा देनी चाहिए, भगवद गीता की शिक्षा देनी चाहिए, उन्हें जप करना सिखाना चाहिए। दिस इज़ द मैसेज ऑफ भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवतम। So spiritual life does not mean that we give up everything but add Krishna to our life. So it doesn't mean that we are giving up everything. We are just adding Krishna in our life. It's simple as that. That's it. It's not like we are giving everything like जैसे मिसकॉन्सेप्शन, अरे अगर जपने लगा हरे कृष्णा गया तो तेरा बेटा बाबा बन गया, है ना। Just today only one person came. So his son is staying somewhere in Noida, one temple, ISKCON temple. So he was asking me, अरे प्रभु जी आप बता सकते हो मेरा बेटा शादी करेगा कि नहीं today only हाँ। So शादी करना it's different thing हाँ, but one should get this knowledge also ना, what's the purpose of getting married, right? ओके दैट्स अनदर थिंग, बट इट हैपन्स लाइक लोग सोचते हैं कि छोड़ना पड़ेगा, है ना, शादी नहीं होगा, या फिर मेरे घर वाले अपनाएंगे नहीं, हमको कृष्ण को बस सेंटर में लाना है, और फिर कृष्ण को सेंटर में ला दो, और फिर देखो आपके साथ कौन कौन है। जैसे कि कृष्ण को सेंटर में लाने का मतलब, श्रील राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, उनसे एक व्यक्ति ने पूछा था कि हम गृहस्थ लोग, मैं कई बार इसको बोलता हूँ और ये बहुत अच्छा लगता है, कि हम गृहस्थ लोग भक्ति कैसे कर सकते हैं, है ना, वेरी रिलेटेड टू दिस टॉपिक। सो वो पूछते हैं कि हम लोग गृहस्थ लोग कैसे भक्ति कर सकते हैं। महाराज जी बोलते हैं बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है कि
पूछते हैं उनसे कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, वो बोलते हैं 4 सदस्य हैं। तो बोलते हैं बस आज से मान लो कि आपके घर में 5 सदस्य हैं, एक कृष्ण है, तो बस हो गया, यही भक्ति है। अब आगे आएगा कि कृष्ण को कैसे अपने घर में रखना है, वो इसमें आएगा, ठीक है। सो वी डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग बट आवर कॉन्शियसनेस, बस हमको कुछ चेंज नहीं करना है, बस चेतना को थोड़ा सा डेवलप करना है हायर लेवल पे, कि कृष्ण ही जो कुछ हो रहा है उसके केंद्र बिंदु हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं घर में वो कृष्ण के लिए कर रहे हैं, ओके। So many people they say that we don't have Krishna to guide us. कुछ लोग बोलते हैं ना कि अरे ये तो किसी इंसान ने भगवत गीता लिख दी है और तुम किसी इंसान की लिखी हुई भगवत गीता को लेके अपने जीवन में चल रहे हो, है ना। कृष्ण रहते तो मेरे सामने आए और बताएं, ऐसा बोलते हैं ना। सो इन भगवत गीता 4.2 कृष्ण सेड एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषयो विदु। So by parampara we are getting this knowledge. By parampara we are getting this knowledge. So picture is not very much clear, but we can see the Krishna is first there, right? And then Brahma ji, and then the third one is, okay, let me zoom something. Okay, then Narad, then Vyas, and then Madhvacharya, and then there are so many acharyas in our line, and then a final, like right now Prabhupada is our acharya there, right? So we are getting this knowledge in parampara. So Srila Prabhupada brought that same message to all of us in the unbroken chain of disciplic succession. हमें ये जो knowledge है वो गुरु परंपरा में प्राप्त हुआ है. So similarly example is also given in the next. If we approach this knowledge as Arjuna, did we can have the same effect? So अर्जुन ने भगवान से इंक्वायरी की थी भगवत गीता में, राइट? बहुत सारे सवाल पूछे थे। वो डिस्कशन, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन ही गीता है। गीता कुछ अलग से कुछ नहीं है, इंस्ट्रक्शन है। एक जन ने इंक्वायरी किया और भगवान ने उसको बताया, और भगवान के भक्त है। एक्चुअली भगवान किसको बता सकते हैं गीता? उनका जो कोई अपना स्पेशल आदमी रहेगा तभी ना। वो स्पेशल आदमी कौन है? भक्त। तो अगर हमको गीता समझना है तो हमें भक्त बनना पड़ेगा, है ना। और भक्त बन के किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर वी शुड अप्रोच, एंड देन वी कैन इंक्वायरी, है ना, देन वी अंडरस्टैंड। एंड देन वी दिस क्वेश्चन अराइज दैट हाउ डू वी नो इफ वी आर हियरिंग फ्रॉम द राइट सोर्स? इट्स वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन ना, दैट अरे प्रभु जी आप तो बहुत फेंक रहे हो, और कैसे पता कि आप सही जगह पे हो? सो वी कैन सी दैट क्वालिफिकेशन ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर. So by the mercy of Guru one gets Krishna, and by the mercy of Krishna one gets a Guru. So अगर हम ISKCON में आए हैं, there is a verse in Bhagavad Gita which tells that if all your sins has vanquished, then only you come to Krishna. So in one of the Prabhupada lecture, while mentioning this verse, Prabhupada mentioned that किसी व्यक्ति का जब सारा पाप खत्म हो जाता ना, then that person comes to ISKCON. It's not very easy to come to ISKCON, है ना, and then put this tilak, then kanthi, है ना. It's not very easy. सब लोग कंठी को देख के इतना ये नहीं होते, लेकिन कोई कोई एक डिवोटी रहते हैं ना, वो आपको देख के ना अंदर अंदर जिज्ञासा कर लेते हैं कि मुझे भी कंठी पहनना है। कर लेते हैं ना, आप लोग भी ऐसे ही चालू किया था, मेरा भी ऐसे ही। मैं सोचा कि यार मैं पहनूंगा इसको, जो भी होने दो। मुझे लगता था कि ये कैसे बांध देते यार, कितना राउंड करके है ना। सो ऐसे ही स्टार्ट, वो भक्ति है, वो अट्रैक्शन है। कृष्ण क्या, ऑल अट्रैक्टिव, कहीं से भी अट्रैक्ट कर देते हैं, कंठी से, तिलक से, धोती कुर्ता से, है ना, या फिर अपने, खैर उनका स्वरूप तो क्या ही। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं ये झोला क्या लटका के रखते हैं। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं उसमें जो चैन रहता है ना वो काफ़ी काम का है, उसमें कुछ भी रख लो, तो इसके लिए वो लटकाने लगते हैं। अभी मैं आप सबसे पूछूँ ना थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा, तो आप लोग ही ऐसा ऐसा बात बता दोगे कि कभी नहीं सुना रहेगा हमने। कृष्ण है ना, इसलिए ऑल अट्रैक्टिव है ना। कृष्ण के डिवोटी भी कुछ ऐसे दौड़ रहे चल रहे हैं, कुछ तो अट्रैक्ट कर देगा आपको, है ना, क्योंकि वो फीचर उधर रहता है। सो वेल वर्स विद द साइंस ऑफ कृष्णा, दिस गुरु परंपरा, it is bona fide. And how it is bona fide? It is connected with the parampara, and then it's sampradaya. Sampradaya is also there. So what does sampradaya means? That samyak pradayate iti sampradaya. Samyak means completely handing over, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे connected है, that is sampradaya.
So now it comes that there are 4 bona fide sampradayas there. The one is, कौन बताएगा चारों एक साथ? You can raise hand, one who can tell all 4. Yes, you tell. Okay, give some other. कोई बताएगा चारों के नाम? नाम नहीं दिया है इसलिए. Yes, online somebody is telling. You can tell. Yes, Proji. Rudra Sampradaya, Sri Sampradaya, Kumar Sampradaya, and Brahma Magna Gauriya. Correct, bro. Thank you, bro. So there are 4 sampradayas are there. Mataji, we can discuss later. Okay, you are telling only one sampradaya with 3, 4. Rudra Sampradaya, Huh? Madhva Gaudiya, Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, Sri Sampradaya, Okay. and Kumar. Yes. Correct. Oh, correct. Okay, correct. So this Lakshmi ji you are seeing na, Sri Sampradaya. It's the Acharya is Ramanujacharya, and then ब्रह्मा जी, द आचार्य इज, आप लोग बोल सकते हैं ऐसा थोड़ा. एंड देन दिस रुद्र संप्रदाय, आचार्य इज विष्णु स्वामी. एंड देन दिस कुमार संप्रदाय, द आचार्य इज निम्बारका स्वामी. सो वी आर कमिंग फ्रॉम दिस मध्वाचार्य, ब्रह्म मध्वा, एंड देन चैतन्य महाप्रभु कम्स, दैट हाउ इट बिकम गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्म मध्वा गौड़ीय संप्रदाय. So this is like institution, like there are college also na, like this Mumbai University, and this we can think like that, you know, in that way we understand that हमारा डिग्री मुंबई यूनिवर्सिटी से है, हमारा तमिलनाडु से है ना. तो ऐसे ही हम किससे है, ब्रह्म मध्वा गौड़ीय संप्रदाय से है. वी कैन अंडरस्टैंड लाइक दैट. सो एग्जाम्पल इज ऑल्सो गिवन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, राइट. ऐसा भी हम समझ सकते हैं. So what is the proof that we are hearing in parampara? So that is also one can inquire that what is the proof that we are hearing this knowledge in parampara. So there is a change in our heart and our lives, otherwise it is simply a pious entertainment. ठीक है. So today only I saw that this Patanjali people, they have their own dress and they are coming and they are doing whatever they want to do. I don't want to discuss all these things, but I am just telling that whatever parampara, whatever, you know, that is not a parampara, but so many people, they go outside and they join some, you know, kind of institution, maybe social welfare or something like that. So if by joining that institution, if you are not it's not there is not a change in your heart, then it's a pious entertainment. They are just doing a pious entertainment. They are just going and cleaning the beaches and cleaning the roads, and this kind of activities is going on. You might see, and the second one is has realized the conclusion of scriptures by deliberation. So scripture is very important. This Bhagavad Gita is very important. We can understand this message only by the scriptures, right? Because that's why Krishna has given this message in Bhagavad Gita. Fixed in devotional service to the Supreme, okay, has controlled his senses. So these are the qualities we can understand that who is coming from the parampara. So has controlled his senses. The first one is the tongue. So if you are seeing a person going outside eating bada pav, you know, with onion garlic, you understand na, this person is not from Hare Krishna. Even he might be, but he is not following, right? We see na, we understand like this. So is an acharya following guru and sadhu and shastra? So this is very, very important. If the person is coming in a sampradaya, then that person must follow this guru. He has a guru, must, and then sadhu and then shastra. So what is the qualification of a disciple? Like then you have to take a initiation also, right? So disciple means ready to be in discipline. Like अगर गुरु बोलता है कि आप सुबह 4 बजे उठिए, मंगला आरती में आइए, भगवान का आरती करिए, थोड़ा बोरिंग हो रहा है, कुछ लोग सो रहे हैं ऐसा,
ठीक है, एक बार हरे कृष्ण बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So in Bhagavad Gita 4.34, Krishna says tadvidhi pranipatena pariprashnena sevaya upadechanti te jnanam jnanina tattvadarshina. So that how should be a disciple? Like he should be a complete surrender to his guru, right? Inquisitive to know the truth. उसके पास desire रहना चाहिए, क्वेश्चन पूछना चाहिए कि अरे कृष्ण कौन है, कृष्ण क्या खाते हैं, कैसे उनकी सेवा कर सकते हैं, कैसे उनका नाम जप कर सकते हैं. So that person should have some desire at least. Humbly inquiry with the service, humbly inquires with the service attitude. अभी देखो बहुत सारे लोग आते हैं, सवाल दुनिया भर का पूछते हैं और जो बोलो वो करते नहीं, और दूसरी बात सुनते कुछ भी नहीं है आपका. बहुत सारे लोग आते हैं, क्लासेस में भी ऐसे लोग आते हैं जो अपना ही बस दुनिया में से चल के आते हैं, क्लास में जो सुना उससे भी कुछ नहीं पूछते, दूसरी ही दुनिया से सवाल करते. कभी कभी सुबह भागवतम में आ जाओ तो देखना ठीक है ना, उनको कुछ भी मतलब नहीं रहता है, बस यूट्यूब पे कुछ बाहर कुछ वीडियो देखा है और यहाँ पे आके बैठ गए, प्रभु जी इस्कॉन में ये हो रहा है, कैसे आप लोग कैसे चला रहे हो इस्कॉन को उनको बोलो थोड़ा जपा करो प्रभु एक माला, नहीं 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 इतना ये सब टाइम नहीं है, लेकिन वो देख रहा हूँ आपके इस्कॉन में बहुत गलत हो रहा है, ऐसा बोल देते हैं, ऐसा बोलते हैं बहुत लोग. तो ऐसे लोग डिसाइपल नहीं बन सकते हैं. तो हमें पहले अगर नॉलेज को जानना है तो हमें पहले डिसिप्लिन सीखना होगा, डिसाइपल बनना होगा, और उसके लिए कंप्लीट सरेंडर रिक्वायर. अब कंप्लीट सरेंडर ये नहीं घर बार छोड़ के इधर आ जाओ, बस सुनो, एटलीस्ट सुन लो, दैट इज कंप्लीट सरेंडर. अगर किसी ने बोला कि आप 16 माला अच्छे से जप करिए, दैट इज कंप्लीट सरेंडर, दैट्स इट. देन यू कैन इंक्वायर, प्रभु जी हाउ इज दिस, है ना, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, मतलब बहुत सारी बातें हैं. देन यू कैन इंक्वायर. बहुत बार ऐसा होता है मैं कुछ पूछता हूँ प्रभु जी से, प्रभु जी डोंट रिप्लाई, प्रभु जी रिप्लाई नहीं देते, मतलब तब बाद में समझ में आता है 1-2 महीने बाद कि मेरा क्वेश्चन ही कुछ काम लायक नहीं था, है ना. लेकिन शुरू में लगता है अरे ऐसा क्यों प्रभु जी जवाब नहीं दे रहे, ऐसा होता है मेरे साथ पर्सनली, है ना. ओके, सो कंट्रीब्यूशन ऑफ अ बोनाफाइड आचार्य. So contribution of such as Acharya is establishment of true temples, which are colleges of higher educations, where one is education and trained to perfect one's lives. So when Srila Prabhupada comes, he established 108 temples around the globe. Okay, and Juhu is one of them. And here Prabhupada established that here you can come and you can learn and then you can practice in your life. So this is a contribution of a bona fide acharya. In the same way, we see that Srila Prabhupada's Guru Maharaj, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj, he also established 64 temples across the India only. 64 Gaudiya Matna Prabhu. Yes. So what is a real temple? So this PPT made by me only. So a real temple is like a hospital, okay, where you come and you know that oh मेरे को ये problem है, और हमारा real problem क्या है? We have a material body. This is the real problem, and this material body is going to vanquish one day, today or tomorrow. I don't want to mention, but recently we have seen the news and all these things. We don't know how much time we have. We don't know that. And still we have so many plans in our life, that I will do this, and after this, after 5 years this, and after 10 years this, and we don't have any idea, Baba, that after one moment what is going to happen, which plane is coming to us, we don't know. This is not a joke, this is very serious. I'm just saying in this that way. We don't know. So the first problem is we have material body, and which is going to vanquish. So then we can identify what is the cause of the disease. So that is our envy. Because of our envy we came to this material planet. We envy first to Krishna, and that's how we came here. And now we are still the same envy is there. Envy with a neighbor, envy with a father, envy with mother also, envy with a wife. Envy is always there within our heart, at least in my heart. I can say as per my experience, envy is always there.
and that's how we came to this material world, na? If you don't have envy, then you are not here. So some people say that, oh, I don't have envy. No, it is not like that. You have envy, that's why you are here. So actually, what is a real temple? If somebody comes to a real temple, there that person can do 5 things. The one is Krishna Darshan. Okay, so we come to ISKCON Juhu, we see Radha Ras Bihari, and then Krishna Siksha we are getting now. We are reading Bhagavad Gita, we associate with devotees and we understand. And then the third one, association. We come to a devotee and then we inquire what to do, what not to do. That is a Krishna Siksha. And then Krishna Naam. We hear Kirtan, right? And then we start chanting also on the beat at helpdecks. I am doing advertisement also. Japa point, huh? So, and then finally what we do? What do we do final after this class? What will happen? Krishna Prasad. So this 5 things will happen related to Krishna if you are coming to a real temple. That's how Prabhupada established temples across the globe like this. If anybody comes in contact with any ISKCON temple, he will do all these 5 things. And that's how diagnose, like whatever disease we have, it can cure. So line of treatment, okay. Medicine is Hare Naam, Hare Naam, Hare Naam Eva Kevalam. That we cover. Okay, so real temple teaches the importance of association of devotees. Who is a sadhu? Titikshva karunika shuhrda sarvadehinam ajat sattva shanta shadhava sadhu bhushana. So who is a sadhu? He is a tolerant, he is a merciful, he is a friend of all living entities. Ajat sattva, no enemies. Santa, like an ocean. Sadhava, he is a walking scripture, he can tell you anything from scripture. Sadhu Bhushana, all good qualities he has. So what happened? We come to temple sometime, but most of the time we go somewhere else. Like this association. What William Shakespeare says, you tell me who your friends are and I will tell you who you are. So if Roshan Prabhu tell that Krishna, Hare Krishna wala my friend, gaya aadmi chhod do isko. Right? So that's how. So in this picture we see that this mantra is telling, and she polluted this Kaikeyi, and then that's how this whole story of Ramayana goes on. And how, like, so there are, you are not, like, most of the people they associate these kind of people, and like they pollute their consciousness and make the hell of their life, right? So importance of acceptance of guidance from a spiritual preceptor. So this is a if you are getting initiation in the line of Guru Parampara, proper Sampradaya, then it's a transparent via media of the Lord. He is not Lord but a representative of the Lord, and repeats the message of the Lord's and makes it accessible. And that's how Srila Prabhupada makes our Srimad Bhagavad Gita Yatha Roop. Same message which Krishna gives to Arjuna, Prabhupada gives to us. So we can see. What does a Guru teach? So how one can be Krishna conscious in family life? This is our actually topic. Whatever we are going through, that was just introduction. So Lord Rishabh says, Guru na shashyad, swajano na shashyad, pita na shashyad, janani na shashyad, daivam na tashyad, na pati shashyad, namochaya shamupet mrityam. मतलब कोई भी है ना, फादर मदर गुरु है ना, एंड दिस वर्शिपेबल डीटी नहीं बनना चाहिए जब तक कि उस व्यक्ति को आप इस भौतिक संसार से पार नहीं कर सकते हो, तब तक आपको ये ड्यूटी नहीं लेना चाहिए. किसी को पिता बनना नहीं चाहिए जब तक कि सामने, मतलब जो बच्चा है उसको आप इस भौतिक संसार से पार न कर दो. और ये लॉर्ड ऋषभदेव कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम में. सो व्हाट डज ए गुरु टीच? The first one is this: how one can be Krishna conscious in family life.
है ना. एंड द सेकेंड वन इज द स्ट्रिक्टली फॉलो द 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स. तो थोड़ा अब टाइम कम है, थोड़ा जल्दी जल्दी जाएंगे, बहुत सारे स्लाइड्स हैं अभी भी. सो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स यू नो. द फर्स्ट वन इज नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट रिलेशनशिप. ओके, सो वी हैव टू फॉलो ऑल दिस 4 थिंग्स in our life. This is what Guru teaches. So and the third one is moral and spiritual honesty. What is moral and spiritual honesty? Being moral and honest to Krishna, real morality and honesty. अब कुछ लोग बोलते हैं ना, नहीं नहीं मेरा दोस्त मतलब जा रहा है मार्केट में, या मेरा दोस्त जा रहा है मतलब कहीं तो बाहर जा रहा है, मटेरियलिस्टिक एसोसिएशन में जा रहा है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड आई एम गोइंग. नो 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 नो, वो फ्रेंड नहीं भाई, रुको, है ना. हमको कृष्ण को जीवन में रखना है. तो द मोरालिटी इज, जैसे क्या होता है, अभी आप मंदिर आ रहे हो और आपके किसी ने दोस्त ने बोल दिया कि नहीं नहीं कहीं और जाना है, मान लो कहीं तो पब में जाना है मान लो, तो आप बोलोगे नहीं, आप उसको कैसे बोलोगे? व्हाट इज़ योर सोशल एंड मोरल एंड स्पिरिचुअल ऑनेस्टी. सो मोरल है, आप बोल सकते हो नहीं नहीं मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, लेकिन थोड़ा वो इसमें नाराज़ हो सकता है, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा कुछ तो अपना दिमाग लगा सकते हो कि नहीं नहीं मेरा तबीयत ख़राब है, या कुछ तो ऐसा बोल सकते हो. सो स्पिरिचुअल ऑनेस्टी है इसमें है कि आप बोल दो नहीं मेरा तबीयत ख़राब है और आप इधर आ जाओ, ऐसा बोल के, है ना, ऐसा है. हाईएस्ट प्रिंसिपल इज लिविंग एज पर कृष्णास इंस्ट्रक्शन. कृष्णा सेज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा. सो द फर्स्ट वन इज सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा. So what is the definition of morality? Morality is a standard of activity by which the supreme authority Krishna is satisfied. For a higher principle, lower principle can be given up. Example of Kaushik Muni. So Kaushik Muni एक बार बैठे थे, ध्यान कर रहे थे, एक काऊ मतलब एक गाय दौड़ती दौड़ती जाती है और उसके कुछ देर बाद एक काऊ बूचर भी जाता है, गाय काटने वाला. कौशिक मुनि से पूछता है गाय किधर गई, बोल देते हैं इधर गई. तो झूठ नहीं बोला उन्होंने, है ना. सो ये मोरालिटी है कि भक्ति के लिए थोड़ा सा ऐसा इधर उधर कर सकते हैं. एंड देन फोर्थ वन इज चैरिटी. सो इन गृहस्थ लाइफ चैरिटी इज वेरी मच फोकस्ड. सो व्हाट इज चैरिटी? Actually Krishna says in Bhagavad Gita, यज्ञ दान तपस्यैव न त्याजेत एव कर्मचा. मतलब यज्ञ दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम, है ना. यज्ञ दान और जो तप है ना, ये जो मनीषी लोग रहते हैं, साधु महापुरुष रहते हैं, उनको भी ये पावन कर देता है. तो ये हाउस होल्डर को तो ये करना ही चाहिए, यज्ञ दान और तप. सो व्हाट इज चैरिटी? चैरिटी इज मोड ऑफ ignorance, giving the wrong thing to wrong person in wrong place at wrong time. So this is mode of ignorance. And then mode of passion, giving the right thing to right person in right place at right time with wrong motive. Okay, so charity in mode of goodness also there, but all these 3 charities are binding in, again you have to take birth. So these charities are binding. Therefore the best charity is transcendental charity. So what is transcendental charity now? A charity by which we give Krishna to others. Okay, so example of Mr. Malhotra and Srila Prabhupada. So what happened? This Mr. Malhotra was from Pune. So one day he comes to Prabhupada and he started asking कि प्रभुपाद इतने सारे तो मंदिर है, आपको मंदिर बनाने की क्या ज़रूरत है. ऐसे ही उन्होंने बोलना शुरू कर दिया. प्रभुपाद ने बोला कि ठीक है, सपोज़ आप गाड़ी से जा रहे हो और आपने देखा कि एक बहुत फेमस आदमी का बच्चा जो है वहाँ पे खड़ा है और वो गुम हो गया है, वो अपने पापा से बिछड़ गया है, घर वालों से बिछड़ गया है, तो आप क्या करोगे? तो प्रभुपाद फिर उनसे बोलता है कि एक आदमी है जो आके उनको खाना देता है, दूसरा आदमी है दवाई देता है, और तीसरा आदमी कुछ तो गंदा खिला देता है, लेकिन एक चौथा आदमी आता है और वो देखता है कि ये बच्चा किसका है, और वो व्यक्ति क्या करता है, उस बच्चे को लेके जाता है और उसके रियल फादर जो है उसको दे देता है. सो अब प्रभुपाद उनसे पूछते हैं कि आपको कौन सा चैरिटी करना चाहिए, है ना, कौन सा लड़का, कौन सा व्यक्ति अच्छा काम किया, किसने? तो बोलते हैं ऑफ कोर्स चौथे व्यक्ति ने अच्छा किया. तो वैसे ही कुछ लोग सोचते हैं कि मैं जो दान
मंदिर में दे रहा हूँ, मंदिर बनाने के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो मिस्टर मल्होत्रा है ना, ही इज़ स्टिल देयर एक्चुअली, अभी भी हैं वो। और उसी दिन से उन्होंने कृष्ण को यहाँ पे गले में माला कृष्ण का पहन लिया, कंठी नहीं, कृष्ण को बना के पहन लिया। और वो पुणे के सबसे धनी व्यक्ति हैं, अभी भी वो इस्कॉन से कनेक्टेड है और इसलिए बहुत फेमस है। जस्ट बिकॉज प्रभुपाद उनसे कुछ डोनेशन के लिए बोले थे, एंड देन ही स्टार्टेड आस्किंग, एंड दिस इज़ हाउ दिस पास्ट टाइम्स हैपन। सो असली जो चैरिटी है वो किसी को कृष्ण को दे देना है। तो किसी को कुछ दान करना है, कुछ भी किसी को देना है, तो आप या तो कृष्ण बुक दे दो, भगवत गीता दे दो, उसको कुछ प्रसाद दे दो। दैट इज़ द बेस्ट चैरिटी यू कैन डू, है ना। और फिर कुछ लोगों के पास लक्ष्मी बहुत सारा है, तो वो आप मंदिर में दो, जो भगवान की सेवा में लग सकता है। How to dovetail your occupation in devotional service. So nowadays, like earlier we discussed, that people are saying we have no time, but Guru gives us the secret of how to make our home into temple. Now this is the point, how we can make our home as a temple. So how to transform our home into temple? The first thing you can do, you can invite the Lord, right? How you can invite? You can invite by picture, you can invite it by deities as a archvigra. So if we have a place for the Lord in the heart, that we will have a place for Him in our home also. हम बोलते हैं ना कि हमारे हृदय में भगवान हैं, तो similarly we have to make a place in our home also, right, for Lord. Give Him the best possible place in the home. Okay, so the Lord should be established and worshipped. घर में भगवान का विग्रह होना चाहिए या फोटो होना चाहिए, और वो वर्शिप किया जाना चाहिए डेली। So this is our Juhu temple. So how do we worship? So establish an altar. हम देखते हैं कि हमारा जुहू में कैसा मंदिर है, अल्टर है, और हम भगवान का भोग लगता है, 5 बार लगता है। तो आप घर में जितना 2 बार पॉसिबल है 2 बार भोग लगा सकते हैं, आरती कर सकते हैं, है ना। और अपने ही घर के लोगों को बुला सकते हैं, है ना, कि आप आरती में आइए, एंड then you can offer bhoga to Lord, and then you can give them prasad also, right? So by this way you can engage your family members, right? So there are so many people, they ask that मेरे मम्मी मान नहीं रहे, मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरे भाई नहीं मान रहे, but then you have to practice at your home the same bhakti we are practicing in temple. That's why this topic has, comes to this, as a session, that the same what we are doing in the temple you can perform in your home also. So this is how you can perform. So a family that prays together stays together. So there is an example that is a big example. Actually एक परिवार को ऐसे शास्त्र में दिया गया है कि एक ही साथ प्रसाद लेना चाहिए, और एक ही साथ भगवान की आरती करनी चाहिए, एक ही साथ रहना चाहिए। एंड यही तो मैसेज है ना, यही तो खुश रहने का एक्चुअली साधन है। लेकिन घर में ही आजकल लोगों को एक दूसरे से कैसा बनता नहीं है ना, बोलते हैं बनती नहीं है, मेरा इनसे बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती? बिकॉज यू आर नॉट डूइंग सेम थिंग टुगेदर, दैट्स वाई। एंड सेम थिंग कैसे कर सकते हैं टुगेदर? जैसे अभी बच्चे को गेम खेलना है, पापा को न्यूज़ देखना है, मम्मी को सीरियल देखना है, हो गया रिमोट के लिए लड़ाई। लेकिन अगर तीनों भक्ति करें, तीनों मिलके जप करें, भगवत गीता पढ़े, दे कैन डू, राइट, ऐसा। सो एक्चुअली दिस इज़ द वे, सो वी कैन पुट लॉर्ड इन अल्टर। एक्चुअली यहाँ पे एक सीढ़ी के जैसे रहता है, आपने अगर देखा होगा किसी घर में, तो सबसे ऊपर हम गौर निताई को रखते हैं, देन वी पुट राधा कृष्ण फोटो, है ना। अगर आपके घर में डीटीज नहीं है तो सबसे ऊपर ऐसे फ़ोटो दोनों एक साथ रख सकते हैं। नीचे हम पंचतत्व रख सकते हैं, उसके एक जस्ट साइड में नरसिंह देव को रख सकते हैं, और फिर हम ये गुरु परंपरा को रख सकते हैं, और फिर तुलसी महारानी को रख सकते हैं। एंड देन हम आराम से भोगा लगा सकते हैं, आरती कर सकते हैं, है ना। ऐसे हम अल्टर रख सकते हैं अपने घर में। ऐसे ही ये लाइन हमारा मतलब फॉलो करते हैं हम टेम्पल में। आपको थोड़ा समझ में आ रहा है? आप लोग को आ रहा है ना सबको? तो ऐसे हम घर में, और कोई जिसके घर में कोई जरूरी नहीं सबको डीटीज रखना है, फ़ोटो भी रख सकते हैं। फ़ोटो रखिए, गौर निताई का फ़ोटो रखिए। गौर निताई बड़े दयालु हैं एक्चुअली। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि लक्ष्मी के घर पे लक्ष्मी ख़त्म हो सकता है, लक्ष्मी के पास लक्ष्मी कम हो सकती है, लेकिन जो मेरे निताई को रखेगा अपने घर में, उसके घर कभी लक्ष्मी कम नहीं होगी। तो ये स्पेशली हाउस होल्डर्स के लिए बताया, क्योंकि हाउस होल्डर जो गृहस्थ लोग हैं उनको लक्ष्मी चाहिए रहता है। हर जगह बच्चे का फीस है, ये है वो है, दुनियादारी है ना, रेंट है, इधर पैसा लग रहा है, दिन भर पैसे का ही चलता रहता है ना, गिनना, बेचारे बैंक में कम हो गया,
तो गौर निताई को रखिए, कमी नहीं होगी लक्ष्मी की। गौर निताई का फोटो रखिए, गौर निताई को भोग लगाइए, बस हो गया। ठीक है, नीचे गुरु परंपरा को भी रखना चाहिए, और फिर तुलसी महारानी को। तुलसी महारानी अगर आप रखते हैं, डेली जल देते हैं उनको, तो आप समझ लीजिए आप वृंदावन में रहते हैं। कहाँ रहते हैं आप लोग? वृंदावन धाम की। तो ये है तुलसी महारानी की महिमा। ठीक है, सो अभी चिल्ड्रेन पे क्या इम्पैक्ट होता है इसका? इन वैदिक कल्चर जॉइंट फैमिलीज वर स्टेइंग टुगेदर। 80% ऑफ मैरिजेज इन अमेरिका एंड इनटू अ डाइवोर्स इन फर्स्ट 3 years। ओके, दिस इज अ मतलब एक ये है आंकड़ा है। इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रेन, फर्स्ट 3 years ऑफ लाइफ ऑफ किड्स आर क्रूशियल लाइक वेट सीमेंट। जैसे सीमेंट क्या, अभी सीमेंट अभी एक बार पानी डाल के उसको बनाया, फिर जैसे छोड़ दो वैसे ही पत्थर हो जाता है। अगर सही जगह से बना दिया तो वैसे ही बच्चों का असर है। दीज स्पिरिचुअल एक्टिविटीज लीव लास्टिंग इम्प्रेशन अपॉन द किड्स। और बच्चों को अगर एक बार हरे कृष्ण सुनाया बचपन में, धीरे धीरे बड़े होकर वो भक्त बन जाएंगे। और जो आपके घर में कोई शुद्ध भक्त बन गया तो 21 पीढ़ी आगे और 21 पीढ़ी पीछे भगवान के धाम में, है ना? ठीक है, therefore it is very important that we establish a temple in our home, but there is a tendency that everything done repeatedly for some time becomes mechanical। अब ये बार बार करते रहने से क्या मैकेनिकल हो जाता है, अरे वही तो करना है डेली डेली डेली, है ना? How to protect ourselves from all our activities become ordinary mechanical material activity by performing साधना। आपको किसी ने घर में रख लिया सब कुछ, लेकिन हमें साधना करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, है ना? एंड देन भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा, भागवतम पढ़ना पड़ेगा, है ना? भक्तों के संग में जाना पड़ेगा, है ना? सो दिस इज अ एग्जाम्पल। नारद मुनि एक बार द्वारका में गए थे और भगवान को वहाँ पे उन्होंने कैसे देखा। सो द्वारका सिटी डिस्क्राइब्ड प्रोटेक्टेड बाय विष्णुज एज भोगवती, द कैपिटल ऑफ नागलोका इज प्रोटेक्टेड बाय द नागस। सिटी वॉज फिल्ड विद द अपुलेंस ऑफ ऑल सीजन। सो ये द्वारका सिटी का एक डिस्क्रिप्शन दिया कि भगवान कैसे रहते हैं, तो आपको भी भगवान को अपने घर में कैसे रखना है। देन यू कैन अंडरस्टैंड बाय ऑल दिस थिंग। फेस्टिव साइंस, फ्लैग, गार्लैंड्स एंड पेंटेड साइन एंड स्लोगन्स वर गिविंग सैट्स। सो हम अपने घर में भी थोड़ा श्लोकास वगैरह पेंट करके ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा लगे कि हाँ मंदिर टाइप का है। आप भी थोड़ा देखो तो एक तरफ भगवान दिख रहे हैं, श्लोक दिख रहा है, कुछ तो डायरेक्शन दिख रहा है। वृंदावन में एक डिवोटी है, उनके घर में मैं गया था तो तो उनके घर में गया था तो वो अलग अलग उनके घर में रूम था, थोड़ा पेड़ था। तो एक तरफ उन्होंने पेड़ था थोड़ा सा पहाड़ बना के बता दिया ये गोवर्धन है, ये नंदगांव है, ये रूम का नाम नंदगांव है, इसका नाम वृंदावन है। तो ऐसे हम कर सकते हैं, ऐसे है ना, लिख सकते हैं ऐसे। थोड़ा कोई बाहर से भी आया तो उससे बोलो नंदगांव से थोड़ा प्लेट ला के देना। ठीक है, so this is how we can understand. All places were cleansed and scented. Auspicious seeds and fruits were strewn everywhere. So थोड़ा समझ लो, क्लीन वगैरह होना चाहिए, क्लीनिनेस होना चाहिए, है ना? एवरी हाउस प्रिपेयर्ड फॉर द लॉर्ड्स वर्शिप। और कहीं भी किसी भी रूम में जाके कथा कर सको, है ना, कीर्तन कर सको, बैठ के पढ़ सको, क्लीन वगैरह ऐसा होना चाहिए थोड़ा। जो भी घर आपके पास है, जो भी घर आपको भगवान ने दिया है वो घर में आप ऐसा एटलीस्ट ये रोल मॉडल फॉलो कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, रिसेप्शन टू द लॉर्ड एंड लॉर्ड्स रेसिप्रोकेशन। क्लोज रिलेटिव्स अवेंडेड देयर एक्टिविटीज एंड रश टू वेलकम टू द लॉर्ड। जब भगवान द्वारका में आते थे तो जो कोई ऐसे लोग रहते थे जिनकी पत्नियां रहती थी, वो अपने पति को भी छोड़ के भगवान को देखने आ जाती थी, है ना? ऑफर्ड रिस्पेक्ट्स सेचुरेटेड विद अफेक्शन। अब क्या भगवान को उठ के डेली आप उठाइए, है ना, उनको प्रणाम करिए, फिर आरती करिए, और आप डेली सुबह उठ के तैयार हो जाइए कि मुझे भगवान को देखना है ना, मुझे भगवान का भोग लगाना है, भोग बनाना है तो अच्छे से बनाएंगे, किचन में सब कुछ अच्छा रखेंगे, किचन में कुछ भी बाहर से नहीं लाएंगे, है ना? समझ रहे हो ना आप लोग? बेसिक चीज़ है, क्लीनिनेस फॉलो करना किचन में भी, एवरीवेयर यू हैव टू फॉलो एवरीथिंग, है ना? और भगवान को प्रणाम कर रहे हैं तो अब घर में ही रखा है तो प्रणाम कर रहे हैं तो आपको लगना चाहिए हाँ भगवान को ही प्रणाम कर रहे हैं, है ना? थोड़ा अफेक्शन होना चाहिए। और ये एग्जांपल दिया, मेनी प्रोस्टिट्यूट असेंबल टू मीट द लॉर्ड विद ग्रेट ईगरनेस। इवन दो वैश्या लोग भी थी, वो भी भगवान से मिलने आ जाती थी, ऐसा वो भी देखना चाहती थी। डिफरेंट सेक्शन ऑफ कम्युनिटी डिड परफॉर्मेंस टू वेलकम द लॉर्ड।
है ना। लॉर्ड रेसिप्रोकेटेड अप्रोप्रिएटली विथ एवरीवन, तो जो जिस भाव में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्, जो जिस भाव में मेरी शरण में आता है मैं उसको वैसा ही, मतलब वैसे ही मिलता हूँ जैसे जिस भाव में आते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा भगवान कैसे एंट्री करते हैं उसमें देते हैं। अब देखिए, लॉर्ड्स हार्ट इज मूव्ड बाय डिवोटीज सेवा भाव सर्विस एटीट्यूड which is the only way to attract him. Seva bhav, that is very very important. We comes to temple every day, like every weekends, whenever we comes, we should think that, oh, I have come to temple, now I should do something, I should serve something, I should serve actually. That mood we should have. Like this boy, you know, this is a Bittel, it is from Pandharpur actually. This is maybe going to do something, but this boy is thinking that oh बारिश आ रहा है, भगवान भीग रहे, तो he just put umbrella. So this is a भाव, we don't have that भाव, but we should develop that भाव actually, है ना। तो भगवान जैसे मैंने देखा डिवोटीज़ को 3-4 घंटे से उन्होंने भोग नहीं लगाया, तो बाहर गए थे, आए तो दौड़ दौड़ के ये बोले, अरे मेरे भगवान को भोग नहीं लगाया, अभी तक भूखे होंगे थोड़ा पागल बन के लेकिन ऐसा ही, दिस इज द भाव एक्चुअली। If you have put the picture of Gaur Nitai at your home, then you should think that अभी आप 10 बजे सो के उठ रहे हो, तो आपको थोड़ा ध्यान में आना चाहिए, अरे भगवान गाली दे रहे होंगे मेरे को, घर में लाके बिठाया, खिला पिला भी नहीं रहे, है ना। एटलीस्ट इतना भाव तो आना चाहिए कि मैं पतित हूँ प्रभु, मैं पतित हूँ, है ना, मैं 10 बजे उठ रहा हूँ तो इसी तरीके से हमें 4 बजे उठना चाहिए, सुबह आरती करना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए। व्हाट इज साधना, घर पे जो साधना करना है। सो दोज एक्टिविटीज दैट री-स्पिरिचुअलाइज आवर लाइफ्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, एवरीथिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ यू शुड थिंक जपा, चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। व्हाई शुड वी चैंट ऑन बीट्स? कॉन्सेंट्रेशन, रेगुलेशन। जो भी हम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बहुत ध्यानपूर्वक जो बोलते हैं वो सुनना चाहिए, और जो सुनते हैं वो बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जप कर रहे हैं और कथा भी सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। जप कर रहे हैं, थोड़ा मोबाइल का न्यूज़ भी देख लिए, ऐसा नहीं। जप कर रहे हैं, थोड़ा किचन में देख लिए सब्जी हुआ कि नहीं थोड़ा कंसंट्रेशन होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए। 16 माला तो 16 माला, उससे नीचे नहीं। When should we chant? ब्रह्म मुहूर्त इज द बेस्ट टाइम, है ना, सुबह उठ के ही जप करना चाहिए। रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर, भगवद गीता पढ़ना चाहिए। हियरिंग फ्रॉम एडवांस डिवोटीज, आप लोग क्लासेस में आते हो, सुनते हो, प्रभुपाद के लेक्चर्स भी सुन सकते हो, है ना, बहुत सारे। द 4 डूज ABCD। द फर्स्ट वन इज एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग करना चाहिए, है ना। तो मंदिर में आते हैं तो गप्पा नहीं लड़ाना चाहिए, थोड़ा सुनना चाहिए कथा ध्यान से, है ना। पूछना चाहिए, प्रभु जी मेरे को ये प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा ऐसा है, मुझे क्या करना चाहिए। और इसीलिए मंदिर बनाया ना, बताया ना मंदिर कौन होता है, उसमें आके हमें पूछना है, भगवान का दर्शन करना है। बी बुक्स, रीडिंग बुक्स मतलब कुछ उपन्यास नहीं, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, है ना। चैंटिंग द नेम्स ऑफ लॉर्ड, है ना, चैंटिंग डाइट कृष्ण प्रसाद। सो थोड़ा सा जीवा पे कंट्रोल करना चाहिए। अगर कृष्ण को भोग लगा नहीं है तो वो नहीं खाना चाहिए। अगर इतना भी कर लो तो भगवान मिल जाएंगे, अगर बेसिक से स्टार्ट कर दिया तो, ठीक है। और मंदिर में हम आते हैं और सुनते हैं कथा, एसोसिएशन, ओके। सो ये विंस्टन चर्चिल, है ना, उन्होंने कुछ कहा था, द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ अ यूनिवर्सिटी इज टू टीच विजडम नॉट ट्रेड, कैरेक्टर नॉट टेक्निकलिटीज़, है ना। सो अगर आपको सत्व गुना बढ़ाना है, सत्व गुना में रहोगे तो ही आप शास्त्र पढ़ सकते हो। भगवद गीता जैसे कोई मारपीट करके आ रहे हो, भगवद गीता उसको पढ़ाओ, नहीं समझ में आएगा, है ना, बोलेगा बस इसमें जो लिखा है वही मैं करके आया हूँ है ना लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सत्व गुण में होना चाहिए माइंड। और सत्व गुण में कब माइंड जाएगा? जब हम क्या पढ़ेंगे? विजडम हम जब बुद्धि का यूज करेंगे, किसमें? भगवद गीता को समझने में। और अगर जब आप जपा कर लेते हो, 16 माला अच्छे से ध्यानपूर्वक जपा किए, तो आप सत्वगुण में चले जाते हो एक्चुअली। और तब आपको भगवद गीता भागवतम पढ़ना चाहिए। आपका एक बार जपा कंप्लीट हो गया तो, और तब वो समझ में आएगा। 10 बार पढ़ लो, 20 बार पढ़ लो, 108, 1008, जितना बार टाइम हो पढ़ते रहो,
आएगा ही समझ में, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए कि मन जो है सत्वगुण में होना चाहिए। 10 बजे के बाद ऐसा बोलते हैं कि भगवत गीता नहीं पढ़ना चाहिए रात को, और कुछ लोग का रात के 10 बजे के बाद ही दिन चालू होता है। तो 10 बजे के बाद कृष्णा बुक ओनली, कृष्ण कथा 10 बजे के बाद। 10 बजे के पहले जितना थियरी फिलॉसफी पढ़ना है वो पढ़ लो, ठीक है। चैंटिंग करना चाहिए, जैसे कि जपा कर लिए, कुछ नहीं है तो भगवत गीता के श्लोक ही पढ़ना शुरू कर दो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभयुत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सो वी शुड लर्न ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो, लाइक श्लोका रिसाइटेशन। हमको याद भी रहना चाहिए श्लोका, क्योंकि किसी ने बाहर गए पूछा क्यों कर रहे हो, तो तुरंत श्लोका फेंक के मारना चाहिए। एक श्लोका रेडी दे, मुंह पे मारो। अरे यार, इसको तो संस्कृत भी आता है। सही में, अगर 2-4 श्लोका, यदा यदा तो बहुत फेमस है, थोड़ा अंदर से बोल दो, कोई तो दूसरा बोल दो, अब मंदिर में ही बोल दो, तो सोचेगा अरे बहुत पढ़ता है। तो थोड़ा एंटरटेनमेंट भी अपना एकदम रेडी रखने का, ठीक है। सो एक लेडी हैं, इन्होंने कुछ तो बोला है, दैट व्हेन आई एम नर्वस आई फाइंड चैंटिंग वेरी क्लेमिंग, आई डोंट गेट सेकंड अप एट लिटिल थिंग्स। तो चैंटिंग करने से थोड़ा आई डोंट नो, क्लेम कामिंग, हाँ कामिंग होता है एक्चुअली, थोड़ा मिस स्पेल। सो आप लोग को भी फील होता है क्या? सच्ची बताइए, मेरे को तो थोड़ा डाउट है। जब करके किसको अच्छा लगता है? हाँ एक्चुअली होता है ना। और जब आप कभी बहुत क्रोध में रहो तो आप जप करिए, और तब आपको पता चलेगा कि जप कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। एक्चुअली ये काम करता है काम, है ना। और देखना, जीवन में कभी कभी ऐसा होता है, कभी किसी टाइम पे कोई भी गुस्सा दिला देता है, मूड खराब कर देता है, करता है ना, हमारा तो करता है भाई। आप लोग साधु पुरुष होंगे, मैं तो ऐसा होता है। उस समय आप जप करिए, कुछ मत बोलिए उस व्यक्ति को, चुपचाप जप करिए, भगवान को याद करिए, है ना। जब हरे बोलते हो तो राधा रानी को याद करो, कृष्ण बोलते हो तो कृष्ण को याद करो, भगवान का रूप भी सोचो, थोड़ा आँख में आ रहा है पास में, और तब देखो कितना अच्छा लगता है। माय गॉड कृष्ण, तब लगता है हाँ यार कृष्ण तो है, अब सही में छोड़ना है कुछ तो, है ना, लगता है छोड़ दे जीवन, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट, रेगुलेट योर ईटिंग, अवॉइड स्ट्रेची ऑयली जंक फूड्स। क्लास बंक मत कर देना अगले बार से, है ना। ईट सात्विक फूड, मिल्क प्रोडक्ट्स, सीजनल फ्रूट्स, स्प्राउट्स, स्पेशली मूंग। तो ये डाइट के लिए है, आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। ये आ गया तो मैंने बोल दिया है ना। क्योंकि ऑयली जंक अगर नहीं खाओगे तो कई लोग तो मंदिर भी नहीं आएंगे, क्योंकि मंदिर में बेकरी है, इधर बिस्ट्रो है, गोविंदा है, इसके गोविंदा के ऊपर ही चर्चा चल रही है। ठीक है, थोड़ा सा अब एक नॉलेजेबल है, हु इज श्री चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए थे इस धराधाम पे। वो कृष्ण ही थे, राधा रानी के भाव में आए थे, और उन्होंने हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया, ठीक है। उन्होंने ये जगाई मधाई का उद्धार किया, जो कि बहुत पतित लोग थे, है ना। वो ऐसा कोई गंदा काम था, चोरी डकैती, है ना, कुछ भी ऐसा गंदा काम बचा नहीं था जो उन्होंने अपने जीवन में किया नहीं हो, है ना। इवन दो उन्होंने भक्तों को भी मार दिया, लेकिन ऐसे लोगों को भी महाप्रभु ने नित्यानंद की कृपा से माफ़ कर दिया और तार दिया, उनको भी भक्त बना दिया। तो हम लोग एक समय पे सोच सकते हैं कि हम बहुत पतित हैं, वैसे तो हम लोग सोचते नहीं हैं पतित हैं, इवन दो हम लोग पतित हैं। समझ रहे हो ना सेंटेंस? इवन दो हम लोग बहुत पतित हैं, पर हम लोग अपने को पतित मानते नहीं हैं। लेकिन हम लोग को पतित मानना है कि हम लोग पतित हैं। पतित मतलब फॉलन। तो पतित से पतित व्यक्ति पे चैतन्य महाप्रभु कृपा करते हैं, और महाप्रभु की कृपा से उद्धार हो सकता है। और महाप्रभु का ही मिशन है, जो आगे श्रील प्रभुपाद जी ने और आगे जाके विदेशों में प्रचार प्रसार किया, और दैट्स हाउ इस्कॉन कम्स, मतलब इस्कॉन उसी से आया आगे चल के ना। तो चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगलों से जा रहे थे, तो उन्होंने जब हरि हरि बोला, तो जो भी जानवर थे वो भी जप करने लगे, वो भी भगवान का नाम लेने लगे, है ना। और वो भी आके चैतन्य महाप्रभु के साथ नृत्य करने लगे।
तो फिर वही मैसेज जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया था उसी को शिल प्रभुपाद जी लेकर आए। तो शिल प्रभुपाद, हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद इज़ द फाउंडर आचार्य ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस्कॉन का जो पूरा नाम है वो ये है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। I फॉर इंटरनेशनल, S फॉर सोसाइटी, फॉर KC, ISKCON, ISKCON. Okay, so Srila Prabhupada was born in Kolkata in 1860, the day after Janmashtami. नंदोत्सव के दिन प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था। The appearance anniversary of Lord Krishna. His life history from his earliest days to his last in 1977 is described in the vivid biography Srila Prabhupada Lilamrit by Satswarup Das Goswami. Srila Prabhupada के जीवन चरित्र को पढ़ना है तो एक बहुत बड़ी बुक है श्रील प्रभुपाद लीलामृत, जिसको सत्स्वरूप दास गोस्वामी उनके एक शिष्य ने लिखी है। अगर आपको बहुत विस्तृत, अगर आपको रोना है भक्ति में कृष्ण के लिए रोना है तो श्रील प्रभुपाद लीलामृत पढ़िए। अब बोलोगे प्रभु जी क्या बोल रहे हो, पर यही सत्य है। श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण कॉन्शियस को इस्टेब्लिश करने के लिए कितना स्ट्रगल किया है, श्रील प्रभुपाद लीलामृत में आपको मिलेगा, तो आप पढ़ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद मेट Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, his spiritual master, in 1922 in Calcutta. Although this was the first time they had met. Actually उसके पहले श्रील प्रभुपाद किसी ऐसे बोलते थे ये गुरु लोग फर्जी है। क्या हुआ कि श्रील प्रभुपाद पुरी में गए थे और एक जन के घर में रुके थे जो कि पुरी मंदिर में क्या थे, पंडा थे और उनके वहाँ जगन्नाथ प्रसाद के साथ मछली खाया जा रहा था। प्रभुपाद जी को जब देखा तो वो सन्न रह गए, तो बहुत कम विश्वास करने लगे थे लोगों पे, सोचते थे दे आर ऑल फ्रॉड। बट जब वो भक्ति सिद्धांत महाराज से मिले थे सो उन्होंने उनसे कहा था, यू आर एन एजुकेटेड यंग मैन, वाई डोंट यू प्रीच द मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य इन इंग्लिश। बिकॉज प्रभुपाद वॉज उनका इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था और बहुत पढ़े लिखे थे उस समय। दिस रिक्वेस्ट बिकम द ड्राइविंग फोर्स इन श्रील प्रभुपाद्स लाइफ। सो एक्चुअली क्या हुआ, जब उनके गुरु महाराज ने उनको बोला कि आप ये मैसेज जाके विदेशों में प्रचार करो, उन्होंने पूछा अभी तो मेरा देश गुलाम है ना, लोग मेरी बात क्यों सुनेंगे। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा था कि ये जो सत्ता है वो 5 साल में बदल जाती है ना, लेकिन आपको इटर्नल जो सत्ता है उसका प्रचार प्रसार करना है। तो ऐसे उन्होंने जाके प्रचार प्रसार किया। 1932 में उन्होंने इनिशिएशन लिया, मिलने के 10 साल बाद इनिशिएशन हुआ उनका, है ना। और उसके बाद भी वो अपना बिजनेस चालू कर रहे थे, फार्मास्यूटिकल बिजनेस का। और फिर धीरे धीरे उन्होंने 1936 में बैक टू गॉड हेड एक पत्रिका चालू की, है ना। एंड इन 1944 ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर व्हेन पेपर वाज स्केयर एंड पीपल हैड लिटिल मनी टू स्पेंड, श्रील प्रभुपाद बिगन एन मैगजीन कॉल्ड बैक टू गॉड हेड। उस समय पेपर बहुत कम हो गया था, नहीं मिल रहा था, पर उन्होंने ये मैगजीन चालू की क्योंकि उनके गुरु महाराज ने बोला था प्रचार करना है और वो विदेश नहीं जा पा रहे थे, इतना पैसा नहीं था उनके पास और उस समय विदेश जाना बहुत डिफ़िकल्ट था। तो प्रभुपाद जी ने सोचा यहीं से चालू करते हैं। और फिर ये ही रिटायर्ड फ्रॉम हिज होम एंड फैमिली लाइफ इन 1950 एंड डेडिकेटेड द नेक्स्ट 10 years of studying and preaching. In 1959 he accepted the order of sannyas, renunciation, और 1959 में प्रभुपाद जी ने संन्यास ले लिया। And within a few years wrote 3 volumes of English translation and commentary for the first canto of श्रीमद् भागवतम। तो पहला श्रीमद् भागवतम कमेंट्री उन्होंने 3 वॉल्यूम में लिखा था, है ना। He brought the paper, gathered donation to print the books, got the books printed and sold them himself, and though एजेंट्स इन द लार्जर इंडियन सिटीज़। सो प्रभुपाद लिखते थे, छपवाते थे, बांटते थे, डोनेशन भी लाते थे, सब कुछ प्रभुपाद अकेले करते थे, है ना। श्री प्रभुपाद ने, ये सन्यास के समय की फ़ोटो है और ये लाल बहादुर शास्त्री को वो दे रहे थे जब वो गिफ्ट दे रहे थे श्रीमद् भागवतम। नाउ दैट ही हैड टेकन सन्यास एंड प्रिपेयर्ड 3 volumes in English, he felt ready to carry out the heavy order of his spiritual master to bring the holy names of Krishna to every town and village in the world. Srila Prabhupada decided to go to America. So Srila Prabhupada अब सोचे कि अब मेरे हाथ में बुक्स है और मैंने संन्यास भी ले लिया है, घर का कुछ जिम्मेदारी, अब मैं जा सकता हूँ। और थोड़ा सा बताऊँ तो जुहू के पास में ही श्रीमती मुरारजी रहती थी, है ना। सिंधिया नेविगेशन उनकी कंपनी थी।
मंदिर के जस्ट थोड़े से दूर पे घर था उनका, अभी नहीं है, तो उसी घर में वो रहती थी। और प्रभुपाद अंधेरी स्टेशन पे जो लेबर्स का क्वार्टर्स रहता है वहाँ पे आके रुके थे और उनसे मिलने जा रहे थे कि आप मुझे परमिशन दे दो कि अपने ये जो जहाज़ है ना पानी वाला, उस पर मतलब जाने का परमिशन दे दो, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। और जब शिल प्रभुपाद अंधेरी से ऐसे जा रहे थे ना, तो रास्ते में उन्होंने ये ज़मीन देखा था। उस समय ये बहुत ताड़ का, ये क्या बोलते हैं उसको, ताड़ का पेड़ था बहुत सारा और जंगल टाइप का था। लोग यहाँ पे ऐसे लाशों को जला के छोड़ के भाग जाते थे। और प्रभुपाद ने उस समय ये ज़मीन देखा था और सोचा था कि ये बीच के पास ही है, क्योंकि इसके बाद में कोई घर नहीं था उस समय, तो बीच ऐसे दिखता था। प्रभुपाद सोचे कि ये ज़मीन खाली है, मिल जाएगा तो मंदिर बना दूंगा। और क्या, भगवान के भक्त अगर मन में भी सोच लेते तो भगवान उसको टारगेट बना लेते, यही करना है अभी। तो यही सब हुआ और उन्होंने एक पास मिला और 1965 में वो अमेरिका चले गए, न्यूयॉर्क सिटी में। हिप्पियों के बीच में रहे, समय हो गया है। आफ्टर ही स्पेंट डिफिकल्ट half year living here and there, his followers rented him a small storefront and apartment at 22nd Avenue in the Lower East Side of मैनहट्टन। सो मैनहट्टन के 22nd एवेन्यू में उनको थोड़ा सा एक रहने का स्टोर फ्रंट के जैसे दुकान रहता है ना आगे, वैसा जगह मिला था। और शिल प्रभुपाद जी को पता नहीं था कि कहाँ जाऊँगा, कैसे जाऊँगा, कुछ भी अमेरिका के बारे में कोई जानने वाला भी नहीं था। ये सोच के कितना ये लगता है, पता कोई 70 साल की उम्र में निकल गए, सोचे करूँगा, है ना। और आप लोग भी सब शिल प्रभुपाद के एक तरीके से फॉलोअर्स हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं, 16 माला जप कर सकते हैं, घर में भी भक्ति इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अमेरिका नहीं जाना है आपको, ऑलरेडी हो गया है काम इधर ही रह के करना है। तो यही सब है, लंबी स्टोरी है, टाइम हो गया है। सो इस्कॉन की स्थापना हुई 1966 में और बाद में मतलब बहुत हम लोग ज़्यादा लोग बैठे हैं। जब शिल प्रभुपाद ने इस्टेब्लिश किया तो एक साइड के इतने लोग ही थे, स्टोर फ्रंट में छोटा सा, उतने ही लोग आते थे, उतने ही लोगों के साथ उन्होंने इस्कॉन को इस्टेब्लिश कर दिया, है ना। नाम रखा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, है 20 लोग नाम रख दिया इंटरनेशनल। उसमें एक बोल रहा था कि गॉड कॉन्शियसनेस करते हैं, बोले प्रभुपाद नहीं, थोड़ा भी डेविएशन नहीं, ओनली कृष्ण, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ऐसा बोले नो, है ना, ऐसी बात है। और फिर अपने शिष्यों को भेजा भारत, अलग अलग जगहों पे भेजा, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, है ना, यूरोप में अलग अलग जगहों पे भेजा। और फिर उन्होंने 108 मंदिर बना दिए 12 सालों में। बोलिए जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, हरे कृष्ण। अब किसी को क्वेश्चन है, कुछ कमेंट्स है तो 5 मिनट है अपने पास और पूछ सकते हैं। अच्छा ठीक है, 5 मिनट ही। यस प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण को धन्यवाद। प्रभु जी, आपने टेम्पल के बारे में 5 बातें बताई, इसमें से 4 बात मैं सुन सकूं। कृष्णा दर्शन, कृष्णा शिक्षा, कृष्णा नाम, कृष्णा प्रचार और 5वां आप प्लीज बताइए। 5वां आप आइए तो बताता हूँ, गोविंदा में ले चल के आपको कृष्ण प्रसाद। हरे कृष्णा, हो गया ना प्रभु? ठीक है, ये वीडियो हम आपको नहीं दिख रहा है क्या? कैसे दिखेगा ये? इसमें कुछ लिमिटेड शेयर किया है क्या आपने? हमने कुछ नहीं शेयर किया है, तो ये यही तो है। अच्छा, एक छोटा सा वीडियो है, उसको चलाना था, थोड़ा सा डिस्ट लो, मैं निकालता हूँ। अरे अब तो आ ही नहीं रहे सर। सुना तो सकते। एक सेकंड, ले गया क्या? हाँ अभी आया, यस करेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा एक शिल प्रभुपाद के साथ एक कन्वर्सेशन हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। लाइट बंद करो।
animals cannot understand what is God. And if the human being also does not understand what is God, then he's enemy. I see. And so your movement is to bring about an understanding of God among human beings. And Hare Krishna means what? Hare Krishna means embracing the energy of God. Hare means the energy of God. And Krishna means God. Okay, you were here yesterday and to attend your annual festival that was held here in Golden Gate Park, and we were there too. And in fact, here it is. A few thousand people came out to hear it. How many people are now disciples of the Krishna consciousness movement? Dedicated by about 10,000 About 10,000 dedicated. in the Western world. Your Grace, is there any significance at all in the shaved head? Why are heads shaved? We keep ourselves very clean. Yes. Oh, it's just a cleanliness thing. Yes. Is there any significance in the color of the robes? At least I have been present more than people think that by keeping long hair, it becomes very beautiful. I see. Yes. We are against it. Just as simple as that. Is there any significance in the yellow robes? Overall, is the best who are dedicated. It could very well have been a blue robe. It's something that's right. This saffron. Your Grace, why do you feel that so many people are pulling away from the traditional religions in this country, such as Christianity and so forth, and going for the trying to understand the Eastern religions? We hear a lot of swamis and gurus and other type of yogi and so forth. Why do you feel that people are pulling away from the traditional Christian standards here? But we see that the Christian churches, especially I've seen in London, mostly closed. People are not interested, or the Christian leaders, they cannot make them interested. Why? Did Christianity fail the people, which is why they're turning to other things? I Or think so. And you say that Hare Krishna consciousness pretty much takes the absolute truths from the Bible, the Quran, the Torah, and the Vedic. And everywhere. Everywhere. Religion means to understand God. I understand, but do you feel that in getting truths from various places like the Bible, the Quran, and so forth, don't you run into conflicts at all or contradictions in those particular philosophies? I don't find any conflict because the ultimate goal is God. So you have to understand God and try to love Him. So you can go through any religious process. If the goal is attained, that you understand what is God and you try to love Him, then your life is perfect. Why do we see so many of your followers chanting almost all the time? Chanting means to keep association with God always. So you have to audibly chant Hare Krishna? This is transcendental vibration. Just like a radio message, if you keep contact with the radio message, then you will know everything what is going on outside. Similarly, this transcendental sound, Hare Krishna, if you chant, then you keep connection with God directly. Thank you very much, Your Divine Grace. It's been our privilege to talk with you and to meet you. Thank you. And hope that we can see you again when you return. Hare Krishna. We'll be back with more news in just a moment. ओके श्रील प्रभुपाद की किसी को कुछ क्वेश्चन रहेगा? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। किसी को क्वेश्चन नहीं है? टाइम इज अप। हरे कृष्ण। हरे
हरे कृष्णा। तो हरिदास बड़ा हरिदास कबीर का हम धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा महामंत्री से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रुति कौन भक्ति है?